Hi guys, welcome for the first time in my YouTube channel. This is my first video and today I'm going to discuss about the strategy which I have followed to clear the SPM set exam, corporate and economic laws. I will discuss about the trends which is going in the YouTube, the myths which is going on the YouTube. That this is an important topic. A particular topic can be ignored, and the particular topic is important. And there is a myth that questions will come from that particular topic which is important as per the market trends, but as per the past papers, past two attempts I have given, in second attempt I have cleared. So I have seen that none of the questions have been repeated, and I have seen that most of the questions have come from the remote topics, which as per the myth is not that important. So today I will discuss about the same. So first of all, if you are planning to give the SPM paper, so I think you should devote at least 10 days for the same. 10 full days means just wrap up the whole things which you are studying, excluding SPM. SPM is the key paper. You have to clear it before filing the exam form, so it is important. So for clearing the form, for clearing the exam in your first attempt, you have to first devote time to that. You have to first respect the subject. It is very tough paper. The paper level is very high, so you can't only rely on the YouTube revision videos which are available. So what I have done, I have read the module 2 times, both other law, economic laws and corporate law. I have read the module 2 times, whole module, and then I tried on second time when I was reading. I was trying to remember the things which I have read before, कि हाँ भाई यहाँ पे ये प्रोविज़न है, यहाँ पे वो प्रोविज़न है, तो ये मैं सब रिकॉल करते जाता था कि हाँ यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वो होगा. जहाँ पे याद नहीं आता था वो प्रोविज़न को वापस पढ़ता था, फिर सेकंड टाइम में वो मेरा पक्का हो जाता था. और जो ICI का बुकलेट है, 50 MCQ का बुकलेट, वो मस्ट है, सो करके जाना. उससे एटलीस्ट मेरे ख्याल से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे. थोड़े से घुमा के थे लेकिन उसी कंसेप्ट पे थे, तो कैलकुलेशन सेम था उसका. अब अपन बात करते हैं चैप्टर वाइज जो वेटेज था मेरे एग्ज़ाम में और कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वैसे तो देखो, इकोनॉमिक लॉ जो है वो तो पूरा इंपॉर्टेंट है. सिक्योरिटी लॉ और इकोनॉमिक लॉ तो पूरा इंपॉर्टेंट है. अब सिक्योरिटी लॉ के अंदर ये ट्रेंड है, ये मिथ है कि LODR इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया एंड ICD, इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर कोड एंड सेबी एक्ट कैन बी इग्नोर्ड, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट मैन. मैंने जब अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया था तो LODR से एक भी क्वेश्चन नहीं था. नॉट इवन वन क्वेश्चन वॉज कम फ्रॉम LODR, बट the whole 20 marks question was included as, means it was bifurcated as 12 marks for SEBI Act including SAT, Securities Appellate Tribunal, and 8 marks was for no, not 8 marks, I think 4 to 6 marks was from ICDR, 2 marks was from insider trading, and 2 penalty questions were there. So you can't just think that LODR is the important टॉपिक एंड द रेस्ट कैन बी इग्नोर्ड. सो ऐसा नहीं है भाई, सब चीज़ पढ़ के जाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ICDR, टेक ओवर कोड, इनसाइडर ट्रेडिंग और सेबी एक्ट तो पढ़ना ही, क्योंकि वो है तो इजी एकदम, और उससे क्वेश्चंस मेरे अटेम्प्ट में तो आए थे. तो मैं एक तरीके से लकी मानता हूँ कि भाई मैं वो पढ़ के गया था अच्छे से और वो क्वेश्चंस आ गए थे उससे. वैसे तो मैंने पूरा ही पढ़ा था वो भी बात है. और जहाँ तक फेमा वगैरह की बात है, तो जब मैंने इसके पहले जो पहला अटेम्प्ट दिया था उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन था, और जब सेकंड अटेम्प्ट दिया था तो उसमें करंट अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन था, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बेस्ड. और FCRA का क्वेश्चन था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट का, तो मुझे याद नहीं है कि क्या था. सेकंड अटेम्प्ट में था कि सस्पेंशन अगर हो गया किसी का सर्टिफिकेट तो कितने दिन तक वो सस्पेंड रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कितने दिन तक सस्पेंड रख सकती है, और इसका जो अथॉरिटी है सस्पेंशन डालने का या फिर सस्पेंड करने का वो किसके पास है, ऐसा कुछ था क्वेश्चन. और कितना परसेंट अपन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें कितना यूज़ कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन थे FCRA के. अब उसमें बचा IBC. हर्ष गुप्ता सर की वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन आप सिर्फ उस पर रिलाई नहीं कर सकते. यू हैव टू रीड द मॉड्यूल वंस, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हुई है जो मॉड्यूल में एक्स्ट्रा दी हुई है. मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन था कि जब अपन किसी भी CIRP जो रिजोल्यूशन प्लान होता है उसको पास करते हैं तो 66% वोट चाहिए रहता है COC कमेटी का. लेकिन मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन था कि मतलब 2 रिजोल्यूशन प्लान आए थे, एक प्लान को 51% वोट मिला, एक प्लान को 60% वोट मिला.
तो क्या होगा अब, क्योंकि दोनों प्लान जो है वो पूरे नहीं हो पाए, तो क्या होगा? तो उसमें 4 ऑप्शन थे कि या तो एनसीएलटी वापस करवाएगा, जो एनसीएलटी बोलेगा वो होगा, या तो जो रिजोल्यूशन जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो जो बोलेगा वो होगा, कि या तो वापस से वोटिंग होगा उसके ऊपर, कि अगर टाइम बचा होगा तो ऐसा करके था। तो उसमें ऑप्शन मैंने टिक किया था कि वापस से वोटिंग होगा, क्योंकि मैंने हर्ष गुप्ता सर की वीडियो में ऐसा सुना था, मुझे जहाँ तक याद है कि ऐसा करना पड़ता है वापस, तो वो एक क्लिक कर गई थी मुझे चीज़, तो ऐसा करके क्वेश्चन था। तो हर्ष गुप्ता सर की जो आईबीसी की वीडियो बेस्ट है, लेकिन आपको एक बार मॉड्यूल तो रीड करना ही पड़ेगा वापस से। और आप अगर शॉर्ट नोट्स के चक्कर में जाना चाहते हैं, मतलब जो मार्केट में है हर्ष गुप्ता सर की 94 पेजेस की जो बुक है, या फिर 320 पेजेस की बुक शायद शुभम सिंघल सर की है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं एट योर ओन रिस्क, क्योंकि मुझे तो कोई रिस्क लेना नहीं था, क्योंकि मैंने पहले अटेम्प्ट में देख लिया था भाई कि अब पास नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा करके। तो मैंने फिर मॉड्यूल से ही रीड किया, और वो मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैंने मॉड्यूल रीड किया पूरा, मतलब नॉट ऑफ लाइफ, जो एसपीएम दिया उसका बेस्ट डिसीजन था। अब आते हैं कॉरपोरेट लॉ में। तो वाइंडिंग अप मस्ट चैप्टर, एकदम मस्त भी और मस्ट भी, क्योंकि उससे आई थिंक मेरे पहले अटेम्प्ट में भी आए थे क्वेश्चंस 8-10 नंबर के, और अभी भी आए थे 10-12 नंबर के, तो उससे क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं। तो वो चैप्टर मस्ट है। और उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला टॉपिक से मेरे पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था। डायरेक्टर्स मैंने जो मैनेजरियल रिवोल्यूशन निकालने का क्वेश्चन है वो नहीं आता, वो मतलब मेरे दोनों अटेम्प्ट में नहीं आया था वो। तो मैंने पहले जो देखा था, जो पास्ट पेपर्स, मतलब जो एक पीडीएफ अवेलेबल है, उसमें रिवोल्यूशन निकालने के क्वेश्चंस थे, लेकिन वो क्वेश्चंस आए नहीं थे एग्ज़ाम में मेरे दोनों अटेम्प्ट में। मतलब अब उससे डायरेक्टर्स वाला टॉपिक के जो रिमोट एरियाज़ है ना, जैसे मैंने जो पहला अटेम्प्ट दिया था उसमें मुझे पूछा गया था कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन था कि अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रहा है तो फिर ये वॉइडेबल होगा या फिर वैलिड माना जाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो जो डायरेक्टर्स के रिमोट एरियाज है ना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्टर्स के बाद आते हैं इंस्पेक्शन पे, मस्ट चैप्टर वो भी, उससे भी क्वेश्चंस आते ही हैं 4 से 6 नंबर के। उसके बाद अरेंजमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ आते ही हैं क्वेश्चन, उससे भी प्रिवेंशन, ये सब छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं एनसीएलटी एनसीएलटी। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट एक आध क्वेश्चन आया, वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में तो नहीं आया था उससे क्वेश्चन, मुझे डेफिनेटली याद है। और फिर आते हैं उसके बाद हाँ, मिसलिनियस टॉपिक्स में से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है कि कौन से अटेम्प्ट में निधि से पूछ लेते हैं, कोई से अटेम्प्ट में दूसरे टॉपिक से रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। मेरे में अभी था स्ट्राइकिंग ऑफ का क्वेश्चन था अभी सेकंड अटेम्प्ट में, उसके पहले वाले में था रजिस्टर्ड वैल्यूअर का क्वेश्चन, और डोरमेंट कंपनी का क्वेश्चन था पहले वाले में। तो ऐसे आपको मिसलिनियस पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद बचा कौन सा चैप्टर, उसमें प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन आया ही था। और ये सब चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, लेकिन है इंपॉर्टेंट। और ये सब छोटे चैप्टर से करके आप इसको मॉड्यूल से आराम से 1 घंटे में रीड कर जाओगे ना, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आप अगर ध्यान से रीड करेंगे तो चीज़ अपने आप याद हो जाती है। कि एमसीक्यूज में जो 4 ऑप्शन में था, क्लिक कर जाता है कि अच्छा हाँ, इसका ये मैं पढ़ा था करके। तो आई थिंक मेरा तो स्ट्रेटेजी यही था कि मैंने पहले अटेम्प्ट में मैं समझ गया था कि भाई इसको लाइटली लेना बेकार है, मतलब अच्छे से ही करना पड़ेगा, और क्वेश्चन सब अनप्रेडिक्टेबल है, तो आप किसी भी पीडीएफ के भरोसे नहीं जा सकते। और अगर आपको रिवीजन वीडियो देखना ही है तो हर्ष गुप्ता सर का, मैं ऐसे कुछ स्पॉन्सर तो नहीं है, लेकिन हर्ष गुप्ता सर का ज़्यादा अच्छा है, पीडब्ल्यू का उतना कोई अच्छा नहीं है। वो पीडब्ल्यू वाले ने, मुझे लगता है हेमंत सोमानी सर ने बस जो रीड करके उसको समझा दिया है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड नहीं किया है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि उन्होंने पूरा डाला हुआ है कंटेंट, तो आप उनका देख सकते हैं एक बार। मैंने सेबी एक्ट उनका देखा था, और सेबी एक्ट में मेरे को क्लैरिटी तो क्या, मतलब मैंने पढ़ा ही था वापस, लेकिन जो एक याद करने वाली चीज़ है वो मुझे हेमंत सर की ये पसंद आई थी कि वो सेबी एक्ट में याद करवा दिए थोड़ा। बाकी उनका एक चीज़ वो बार बार बोलते हैं कि ऑडिट में होता तो ऐसे पढ़ाता, तो वो मुझे बहुत बेकार लगता कि भाई अगर तुम टाइम डिवोट कर रहे हो यहाँ पे पढ़ाने के लिए तो अच्छे से ही पढ़ाओ ना, फिर क्या मतलब ऐसे खाना पूर्ति करने से। तो एक चीज़ वो थी। और दूसरा उनका मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि वो हर चीज़ में जो मतलब उनको लगता था उनके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट नहीं इसको इग्नोर करो, जाने दो, 50 नंबर लाने। वो हमको पता है कि 50 नंबर कितने डिफ़िकल्ट हो गए अब लाने। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा पढ़ के जाना चाहिए वापस से, मैं तो ये बोलूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी मुझे लगता है एसपीएम का एक बड़ा हाइप बनते जा रहा है कि ये कैसे निकलेगा, लेकिन निकल जाता है। बस यू हैव टू डिवोट द टाइम, यू हैव टू आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तो फिर सब हो जाता है।
सो थैंक यू सो मच। देखते हैं अगला वीडियो किस पे, आप कमेंट ज़रूर करें कि किस पे बनाएं, और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।